Hello, guys. Welcome to the third session of CLAT Tips and Tricks by Aniket, your co host. Today, we will learn some important landmark cases that are very much important for CLAT examinations. As you have seen, there are 3 cases which have been recently asked in IELTS examinations, especially. And apart from that, CLAT also has asked 3 questions pertaining to landmark case judgments which have occurred in India. So, today, we will cover up some very vital, important, and very means repeating and recurring questions which can be appearing in CLAT 2017 papers also. So let's do it today. So the first case I have taken it is of Re Berubari case. Re Berubari case. In that case, it was decided that the preamble, which we regard as the preface of constitution, the preamble that time was considered that it was not the source of constitution. री बारूबारी केस में फैसला लिया गया था कि preamble is not a part of constitution and hence therefore it cannot be considered as the source of political power of the constitution. What was held in the Re Berubari case? It was held that the preamble is not the part of constitution and hence it cannot be regarded as the source of political power. This was the first case, Re Berubari case. The second case which we are going to do is Golaknath case versus State of Punjab. Golaknath versus State of Punjab. In this case, the Supreme Court, which court? The Supreme Court held that Parliament has no power to amend the fundamental rights. What was decided? That Parliament has no power to amend fundamental rights. This was concluded in Golaknath versus State of Punjab case. Now comes the very much important topic, very much important case. It's the largest bench case of India, the Keshav Nand Bharti versus State of Kerala. I am sure you have heard this case in each and every classes or every कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा, केशव नंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ करेला. सो इसको हल्का डिटेल में करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, केशव नंद भारती केस, दिस इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन राइट्स केस. केशवनंद भारती केस को क्या कहते हैं? ह्यूमन राइट केस कहते हैं. इसको हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर केस भी कहते हैं. What are the two names of Keshavanand Bharati case? Human right case and basic structure case. The Keshavanand Bharati case versus State of Kerala is a very vital important case because it is the largest bench case that occurred in India. इसमें इकलौता ऐसा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की लार्जेस्ट बेंच सेटअप की गई थी अपनी कंट्री में. 13 जजेस की बेंच बनाई गई थी. हाउ मेनी जजेस बेंच? 13 जजेस बेंच. एंड व्हाट वाज द रेशियो इन विच दे गेव डिसीजन? द रेशियो वॉज 6:1:6. 6:1:6 का रेशियो था. 6 people were in favor, 6 were in against, and 1 was a neutral person who gave neither yes nor no. So the CLAT, neither the 6 which gave in favor and 6 those who gave odd, they cannot be asked very frequently because they are many, but the neutral one, ये जो बीच वाला बंदा था, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इकलौता बंदा था. और इसका एक और केस में भी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले होता है जो हम लोग आगे कवर करेंगे. द न्यूट्रल पर्सन वॉज जस्टिस H.R. खन्ना. यू वुड हैव द नेम व्हेन इफ यू सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स, आपने जरूर इसका नाम सुना होगा. जस्टिस H.R. खन्ना वॉज द न्यूट्रल पर्सन केशवनंद भारती केस. सो केशवनंद भारती केस कभी नहीं पढ़ा. इट वॉज कॉल्ड इज ह्यूमन राइट केस, बेसिक स्ट्रक्चर केस. लार्जेस्ट बेंच सेटअप की गई थी 13 जजेस की. And the neutral judge was whom? Justice H.R. Khanna. And who was the main judge who was the implementation of this case? It was Chief Justice of India that time, Justice Sikri. Who was the Chief Justice that time? Justice Sikri. He gave his final conclusion to his case. What does this case revolve around? The case held that the पार्लियामेंट जो है इट हैज़ पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन. मींस इस केस में, केशवनंद भारती केस में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले प्रायर फैसले जो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में लिया था उसको हटा दिया, उसको नलीफाई करके नया ऑर्डर पास किया कि पार्लियामेंट हैज़ पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट ऑफ केस बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पार्ट शुड नॉट रिमेन चेंज. मतलब बेसिक स्ट्रक्चर पे आप चेंजेस नहीं कर सकते. आप फंडामेंटल राइट्स अमेंड करिए पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड. दिस वॉज द ब्रीफ ऑफ केशवनंद भारती केस. सो आई थिंक यू वुड हैव heard it. Now let's move on ahead. So the next case we will going to discuss is ADM Jabalpur versus Shivkant Shukla. This question has appeared in IELTS paper. So please if you go through the previous year paper you will find it. ADM Jabalpur versus Shivkant Shukla case. This case is also known as Habeas Corpus case. Habeas Corpus आपको पता होगा किस आर्टिकल के अंदर आती है. आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट 5 रिट्स इशू करता है. Habeas Corpus इसका मतलब होता है यू हैव अ बॉडी. Habeas Corpus में नॉर्मली, चलिए मैं उसका ब्रीफ करता हूँ. Habeas Corpus मतलब होता है कोई आपको अनलॉफुली डिटेन कर लेता है तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है उस बंदे को कि please what we say, please present him before the court so that it can inquire into the matter for what was the cause of his detention.
दैट इज हिबीज कॉर्पस। तो किस केस को हिबीज कॉर्पस केस कहा जाता है? हिबीज कॉर्पस केस इज नोन एज एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस। और इसके जज जो थे, इसके जज भी एच.आर. खन्ना थे, इसके जज एच.आर. खन्ना। तो एच.आर. खन्ना से रिलेटेड दो केसेस कौन से हैं? केशवनंद भारती, दूसरा आपका है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस। ये दो केस थे एच.आर. खन्ना के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट केस की ओर। नेक्स्ट केस विच वी आर गोइंग टू डू, then comes our Minerva Mills case, Minerva Mills versus Union of India. In this case, Supreme Court established the relationship between fundamental rights and directive principles of state policy. Fundamental rights किस पार्ट में आती हैं? पार्ट 3 में आती हैं। DPSP किस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आती है? पार्ट 4 में आती हैं। फंडामेंटल राइट्स कितनी होती हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP होती हैं। फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक है? फंडामेंटल राइट्स रिलेट्स टू आर्टिकल 12 to 35, वहीं DPSP आपकी 36 से 51 आर्टिकल तक में आती हैं। ये पार्ट 4 में होती है DPSP। फंडामेंटल राइट्स आप एनफोर्स करवा सकते हैं अगर आपके वायलेट होते हैं, पर डीपीएसपी आर नॉन एनफोर्सेबल। इस बात को ध्यान से नोट करिएगा। फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल वाइल डीपीएसपी आर नॉन एनफोर्सेबल। सो इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड हेल्ड दैट दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अपार्ट फ्रॉम इट also upheld the decision which had taken in Keshavanand Bharti case and it nullified the effect of 42nd Amendment Act। 42nd Amendment कौन सा था? 1976 वाला, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। उसमें एक प्रोविजन था कि जुडिशियल रिव्यू की पावर छीन ली गई थी। सो द कोर्ट नलिफाइड द इफेक्ट ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट रिगार्डिंग जुडिशियल रिव्यू। अमेंडमेंट को नलिफाई नहीं किया था, उसका एक प्रोविजन जो जुडिशियल रिव्यू को बॉयकॉट या हटवा रहा था उसको नलिफाई कर दिया। किसमें? मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। द नेक्स्ट केस, ये थे कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स रिलेटेड केस। अब हम लोग बात करेंगे जो कि कल्चरल और माइनॉरिटी राइट्स रिलेटेड जो केसेस, दो केस इंपॉर्टेंट हैं। पहला केस जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है वो है इंदिरा सोहने। इंदिरा सोहने का आपने नाम सुना होगा। इंदिरा सोहने केस को हम लोग मंडल कमीशन कहते हैं। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा मंडल कमीशन क्या है। मंडल कमीशन केस का नाम था इंदिरा सोहने केस। इस केस में बात होती है अबाउट द रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, देयर बेनिफिट्स शुड बी गिवन। In this case, it was held that the benefit should be given to backward classes which come under non-creamy layer. Remember, non-creamy layer is a key point here. Those backward classes people which belong to non-creamy layer were given the rights, मतलब उनको जो रिजर्वेशन का प्रोसीजर था उसको थोड़ा उनको मतलब रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए जो नॉन क्रीमी लेयर में है। क्रीमी लेयर वन शुड बी अब्जेक्टेड फ्रॉम दैट, क्रीमी लेयर शुड बी अब्जेक्टेड फ्रॉम दैट, नॉन क्रीमी लेयर शुड गेट द बेनिफिट। दिस वॉज हेल्ड इन व्हाट केस? It was Indira Sohane case. Which case? Indira Sohane. The next case which we are going to do is TMA Pai Foundation case। TMA Pai Foundation case आपने आर्टिकल 30 पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट्स में। आर्टिकल 30 रिवॉल्व्स अराउंड द एस्टैब्लिश मीन्स द राइट्स गिवन टू द माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड मॉनिटर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। सो दिस केस रिगार्ड्स अकॉर्डिंग दैट ओनली। इन TMA Pai Foundation case, Supreme Court held that the right of minorities to establish and monitor the educational institutes also garners them right to admission, means they can admit anyone and whoever they like without any compulsion। सो राइट टू एडमिशन भी उनको दे दिया गया था। किस केस में? TMA Pai Foundation केस। दीज वर द केसेस विच रिलेट टू कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ वी विल रिलेट सम केसेस विच रिलेट्स टू दी मीन्स जनरल केसेस। सो लेट्स मूव ऑन टू अहेड। नाउ लेट्स मूव टू दी विच केस? राज नरेन वर्सेस इंदिरा गांधी केस। इस केस में क्या हुआ था? राज नरेन वर्सेस इंदिरा गांधी केस। ये आपके आईलेट क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन मैंने उठाया है। दिस केस रिवॉल्व्स अराउंड विच आर्टिकल विच अमेंडमेंट? दैट इज अमेंडमेंट 39th अमेंडमेंट एक्ट। 39th अमेंडमेंट एक्ट में ये हुआ था कि द इलेक्शन टू अ पर्सन टू पार्लियामेंट हु वाज होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मीन्स हु वाज होल्डिंग अ ऑफिस इन PM ऑफिस, मतलब उसको उन्होंने कहा था कि जो बंदा, वैसे आपको पता होगा कि आप कोई इलेक्शन खड़े होते हैं आपके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, पर राज नरेन वर्सेस इंदिरा गांधी केस में कहा गया था इलेक्शन ऑफ मेंबर टू पार्लियामेंट हु वाज होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट शुड नॉट बी चैलेंज, मीन्स शुड नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट ऑफ लॉ। मीन्स जो बंदे के पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है PM ऑफिस में, उसको चैलेंज नहीं कर सकते थे। ये 39th अमेंडमेंट एक्ट में पास हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको नलिफाई कर दिया, डिक्लेयर्ड इट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इट डिफीटेड द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पर्सन ऑफ इलेक्शन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये कौन सा एक्ट था? इंदिरा गांधी वर्सेस राज नरेन केस। ये कौन से अमेंडमेंट के रिवाउंड करता है? ये 39th अमेंडमेंट एक्ट के रिवॉल्व राउंड करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग किस केस के लिए? हम लोग बढ़ेंगे, अगला केस जो है वो होगा आपका मैंने आपका राज नरेन करवा दिया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग SR बोमई केस पे। SR बोमनी केस किस लिए हुआ था? SR बोमनी केस आपकी स्टेट इमरजेंसीज जो होती है उसके रिगार्डिंग रिवॉल्व करता है।
पहला पॉइंट तो आप ये जान लीजिए एसआर बोमनी में ये हुआ था कि सेक्युलरिज्म, सेक्युलर मतलब द स्टेट शैल हैज नो ऑफिशियल रिलीजन, सेक्युलरिज्म ये कहता है। तो जो सेक्युलरिज्म है इसको हम लोगों ने बेसिक पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरह मान लिया। द सेक्युलरिज्म वॉज रिगार्डेड एज द बेसिक पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अपार्ट फ्रॉम इट इट वॉज ऑल्सो डिक्लेयर्ड दैट द प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट ये डिजॉल्व करते हैं स्टेट असेंबली को अंडर आर्टिकल 356, द प्रेसिडेंट विच डिजॉल्व स्टेट असेंबली अंडर आर्टिकल 356 वॉज नाउ बीन टेकन अंडर जुडिशियल रिव्यू। मतलब अगर प्रेसिडेंट अब किसी भी स्टेट असेंबली को डिसॉल्व करता है तो कोर्ट के पास पावर है, वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है उस चीज़ में, मतलब कि वो इंक्वायरी कर सकता है कि इसने क्यों डिसॉल्व किया। अगर कोर्ट is satisfied that the proceedings which under which president rule was applied in the state is against the constitution, so it can declare that presidential order as unconstitutional and can restore the former government which had been abolished. So the Supreme Court was given a power for judicial review in what related to state emergencies under article 356। ये जो इमरजेंसी से टॉपिक्स है, मैं अपने जो अगला वीडियो मेरा आ रहा है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और बचे हुए जो थोड़े बहुत आर्टिकल सब बचे हैं उनको डील करेगा, उसमें मैंने कायदे से एक्सप्लेन करी हुई है। सो डोंट कीप टेंशन गाइस, आई हैव एक्सप्लेन इट देयर। सो लेट्स मूव अहेड टू द आर्टिकल्स बिकॉज वी हैव डन एग्जीक्यूटिव आर्टिकल्स। नाउ कम्स द ह्यूमन राइट्स रिलेटेड जितने आर्टिकल थे। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो करंट में भी काफ़ी फेमस हुआ है, शाह बानो केस। शाह बानो केस का पूरा जो इलस्ट्रेशन है वो कैसी है, शाह बानो केस वर्सेस अहमद खान केस। इस केस में क्या होता है, इट रिलेट्स टू द राइट ऑफ मुस्लिम वुमेन्स फॉर द मेंटेनेंस आफ्टर डिवोर्स। शाह बानो केस किसके लिए रिलेट करता है, रिलेट्स टू द राइट ऑफ मुस्लिम वुमेन्स फॉर मेंटेनेंस आफ्टर डिवोर्स। इसके लिए अभी हाल में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक प्रॉब्लम हुई थी, ट्रिपल तलाक। इसके लिए एक वर्डिक्ट पास हुआ था कि ट्रिपल तलाक इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल पास हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। नेम द जज, क्वेश्चन कैन बी कमिंग इन द एग्जामिनेशन, व्हिच जज passed the resolution that triple talaq is unconstitutional? So answer is Sunit Kumar. Sunit Kumar was a justice who passed that triple talaq is triple talaq is constitutionally nullified. It's not under the provisions of Constitution of India. So let's move ahead to the next case which is very important. Then the next case we are going to do is Vishakha versus State of Rajasthan. In this, it relates to the establishment of a unit for prevention of sexual harassment of workers. So sexual harassment of workers को प्रोहिबिट या उनको प्रिवेंशन करने के लिए जो केस हुआ था वो था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस इज उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, इसको ध्यान से सुनिए क्योंकि इसके तहत एक फंडामेंटल राइट हमारे में ऐड हुआ था 21A। उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश रिलेट्स टू द राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A। देन द नेक्स्ट केस विच वी आर गोइंग टू डू इज सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। It was decided that writ can be filed by the third person who was moved by the tortures to the prisoners in the jail. Means कोई भी बंदा जो मूव हो जाता सेंटिमेंट से the torture given to the victims in the jail, he can file a writ petition. It ultimately led to the establishment of PIL. What is PIL? Public Interest Litigation. And the main justice, chief justice or can say judge, who was considered as the brain work of PIL, किसका ब्रेन वर्क था, इट वॉज PN भगवती। PN भगवती उस समय दिल्ली की चीफ जस्टिस थी, PN भगवती, उनका ये ब्रेन वर्क था। सो whose brain work was PIL and in which case it was there? It was in Sunil Batra case. Brain work was of which one? PN Bhagwati. We have discussed these cases. Now let's move on to ahead cases like Husainara Khatun. Husainara Khatun case किसके अराउंड रिवॉल्व करता है? It revolves around the fast and speedy trial. Husainara Khatun case revolves around the fast and speedy trial. Husainara Khatun case. देन लेट्स मूव अहेड टू मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस काफ़ी फेमस है क्योंकि राइट टू लाइफ के अराउंड रिवॉल्व करता है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कम्स अंडर आर्टिकल 21। इन दिस केस मेनका गांधी द प्रेजेंट हु इज द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट, शी वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग अब्रॉड। उनको अब्रॉड जाने से रोक दिया था। हर पासपोर्ट वॉज बीन मीन्स एयरपोर्ट अथॉरिटीज उनका पासपोर्ट जो था जब्त कर लिया था। सो मेनका गांधी केस रिलेट्स टू द राइट टू लाइफ। शी वॉज नॉट अलाउड टू गो टू अब्रॉड, दस द कोर्ट declared that not going abroad and preventing it also comes under right to life and personal liberty. Hence this case is a very vital case for right to liberty case. If it asked which of the following is a right to liberty case, so you can mark which case. Menka Gandhi case. The next case which we are going to do, which is came again in IELTS paper, it revolves around People's Union for Democratic Rights versus Union of India, जिसको हम लोग एशियाड वर्कर्स केस कहते हैं। विच केस? एशियाड वर्कर केस। इसमें हम लोग बात करते हैं नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस। इट रिलेट्स दैट द नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस टू वर्कर्स इज ऑल्सो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स अ ऑफेंस। मीन्स सो इट कंक्लूडेड दैट दी राइट, आप अगर नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस जो होती है मीन्स जो एक मिनिमम वेजेस फिक्स की गई हैं, नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस
is also an offense and is against the Article 21 right to life. So these were the some important case which we have discussed according to the Constitution of India. Now we will discuss some landmark cases of foreign also. Like there are four important cases. The first of all you would be very well knowing Ryland versus Fletcher. It revolves around strict liability. What are the difference in strict liability and absolute liability? You would be very well versed with it. Strict liability has no defenses, while strict liability has defenses, while absolute liability has no defenses in it. Then the next case comes to Doglo versus Stevenson. Doglo versus Stevenson case comes under the Doglo versus Stevenson case which comes under which article? Doglo versus Stevenson comes under negligence. ये केस रिवॉल्व्स अराउंड नेग्लिजेंस होता है. एशबी वर्सेस वाइट किस लिए रिवॉल्व होता है? एशबी वर्सेस वाइट रिवॉल्व्स अराउंड योर इंजूरिया साइन डैमनम. एशबी वर्सेस वाइट वाज द केस इन विच ही वाज प्रिवेंटेड टू राइट टू वोट. ऐसे इंडिया में केस हुआ था. कौन सा हुआ था आप चेक करिएगा खुद सर्च करके. एशबी वर्सेस वाइट केस था. इट अराउंड इंजूरिया साइन डैमनम. वाइल डैमनम साइन इंजूरिया पे भी एक केस हुआ था जिसे हम लोग कहते हैं ग्लाउकेस्टर ग्रामर स्कूल केस. Gloucester Grammar School case revolves around damnum sine injuria. These were the four important cases of foreign vital importance. Now I will discuss 2-3 more cases which have came in IELTS question papers and are really important for you guys so that you can be well versed around it with it. So the next case which we are going to do is which case is called national anthem case. किस केस को हम लोग national anthem case कहते हैं? तो national anthem case हम लोग कहते हैं इमॉन बिजुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. इमॉन बिजुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला is also called as which case? It is called national anthem case. Which case is known as judges transfer case? Judges transfer case revolves around which case? SP Gupta case. SP Gupta ने केस किया था about the judges transfers और appointments होती हैं. पहले collegiate system होता था. It revolves around that. And another important case is of सरला मुदगल केस. सरला मुदगल केस रिवॉल्व्स अराउंड द यूनिफॉर्म सिविल कोड. यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में अप्लाई होना चाहिए, इसके लिए सरला मुदगल ने केस किया था. यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में आता है? इट कम्स अंडर आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड. Then the next case which has asked in IELTS 2015 was श्रेया सिंघल केस. रिलेट्स टू विच आर्टिकल, विच पार्ट. उन्होंने पार्ट तक पूछ लिया था आपसे कि इसका कौन सा प्रोविजन जो है वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल या वॉज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. श्रेया सिंह. सो इट स्ट्रक डाउन पार्ट 66A ऑफ विच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल या जो एक्ट था 2005 में जो आया था, इसका 66A पार्ट जो श्रेया सिंघल केस में हुआ था इसको स्ट्रक डाउन कर लिया गया था, यानी उसको हटा दिया गया था. विच केस में? श्रेया सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में. विच केस वॉज द लास्ट जूरी ट्रायल. आपने रुस्तम मूवी देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा पहले जो जजेस ट्रायल्स होते थे, कोर्ट ट्रायल्स होते थे, वो होते थे जूरी बेस्ड पे. तो लास्ट केस विच वॉज बेस्ड ऑन जूरी बेसिस वॉज ऑफ एम नानावती वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. एम नानावती वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र लास्ट जूरी केस था. एंड अनदर केस विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इज मोहरा बीवी वर्सेज दामोदर घोष. इन दिस इट इज डिक्लेयर्ड दैट द राइट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स आप कॉन्ट्रैक्ट जो करते हैं माइनर्स के साथ, कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वाइड एब इनिशियो. वाइड एब इनिशियो मीन्स from the very beginning the contract is void if you are engaged with some minor. So Mohra Bibi versus Damodar Ghosh relates to which right to contract with minor is void ab initio. Another important case which can be asked in the examination is of which case? डैनियल लतीफ़ी केस. डैनियल लतीफ़ी केस जैसे सहारा बानो केस आपने पढ़ा था, मेंटेनेंस ऑफ वुमेन, मुस्लिम वुमेन राइट्स था. डैनियल लतीफ़ी केस भी आपका वुमेन मेंटेनेंस राइट के लिए ही है. आपने अरुणा साहनबाग का नाम सुना होगा. अरुणा साहनबाग जो थी महाराष्ट्र में एक हॉस्पिटल में एडमिट थी. उन्होंने पैसिव यूथनेशिया यानी पैसिव किलिंग के लिए जो केस किया था, उनको वेंटिलेटर पे थी, तो पैसिव किलिंग यूथनेशिया वैसे बैन अपनी कंट्री में, पर उनके लिए कुछ एक प्रोविजन था पैसिव स्लीपिंग यानी पीसफुल डेथ के लिए उनको अलाउंस दिया गया था. विच केस में? अरुणा साहनबाग वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में हुआ था. एंड द लास्ट केस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर you guys to You would very well versed with मोहम्मद हानिफ कुरैशी केस. मोहम्मद हानिफ कुरैशी केस काउ स्लॉटर के अगेंस्ट केस है. मोहम्मद हानिफ कुरैशी. विच केस ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू काउ स्लॉटर? इट्स मोहम्मद हानिफ कुरैशी केस. रिमेंबर वर्ड मोहम्मद हानिफ कुरैशी. और एक केस और आप सुन लीजिए, पीपल यूनियन फॉर सिविल लाइबर्टीज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. पीपल यूनियन फॉर सिविल लाइबर्टीज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. ये किस केस में था? इस केस की बात हम लोग ने किस केस में करी थी? पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. ये हमारे आया था इलेक्शन कमीशन में जो ईवीएम मशीन्स यूज होती हैं उसमें नोटा ऑप्शन ऐड करने के लिए. नोटा ऑप्शन होता है कि इन ऑफ द जिनमें ईवीएम में ऑप्शंस होते हैं उनमें से किसी को भी मुझे वोट नहीं करना है, तो नोटा ऑप्शन आया था किस केस रिलेटेड था? इट रिलेटेड टू पीपल यूनियन सिविल लिबर्टीज एक्ट. एंड द लास्ट केस विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट द फाइनल मोस्ट केस इज नास फाउंडेशन केस. इट रिवॉल्व्स अराउंड व्हाट? इट रिवॉल्व्स अराउंड होमोसेक्सुअलिटी. इट रिलेट्स टू द राइट्स ऑफ द पीपल हु आर होमोसेक्सुअल्स. सो नास फाउंडेशन केस जो था होमोसेक्सुअलिटी के अराउंड रिवॉल्व करता है. आई होप माई दिस वीडियो अबाउट इंपॉर्टेंट केसेस, लैंडमार्क केसेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू all guys, and
and I think I've covered all the cases. And apart from it, if you get any cases which are important, please mention it in the comments. And also my next video which will be going to be uploaded will be based on modern history. So please keep on subscribing, sharing and liking it. Thank you.